الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس آف گریڈنگ حدیث کے درس کا آج تیسرا دن ہے۔ ہم نے جس متن کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نخبۃ الفکر، جسے لکھا ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کی شرح نزہۃ النظر، اور اسے بھی امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ پہلے دن ہم نے انٹروڈکشن دیکھا کہ سائنس آف گریڈنگ حدیث کا بیسک انٹروڈکشن اور کچھ ٹرمینالوجیز کو دیکھا، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بائیوگرافی کو دیکھا۔ دوسرے دن ہم نے مصطلح الحدیث کو دیکھا کہ حدیث دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے، ایک ہے سند اور دوسرا ہے متن۔ اور جو جج ہوتا ہے حدیث کو ہم جج کرتے ہیں وہ ویکنس، قوت کے اعتبار سے اور ضعف کے اعتبار سے، اس کے ویکنس کے اعتبار سے اور اس کے اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے۔ اس میں دو کیٹیگریز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں آگے چل کے، ایک ہے مقبول اور دوسرا مردود۔ مقبول کو اگر آپ ایک جنرل ٹرم میں لیں تو ہم کہتے ہیں جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور مردود کو ایک جنرل ٹرم میں لیں تو کہتے ہیں ہم جس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک جنرل سی بات ہے۔ پھر ہم نے مقبول میں دو دیکھا کہ الصحیح اور حسن۔ صحیح کے لیے کل ہم نے جو ڈسکشن کیا اور جو کل باتیں آئی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اجماعاً 5 کیٹیگری جو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس پانچوں پہ اس حدیث کو کھرا اترنا پڑے گا۔ سند کے اعتبار سے 3، اتصال السند، عدالت الروا، ضبط الروا، اور متن کے اعتبار سے 2، جس میں عدم الشذوذ اور عدم العلل۔ یہ 5 کرائٹیریا تھی جس پہ اگر کوئی حدیث اپنے بل بوتے پر اس کو پاس کر دیتے ہیں تو ہم اس حدیث کو، ویسے حدیث کو کہتے ہیں صحیح لذاتی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ضبط کے معاملے میں اگر کوئی حدیث تھوڑا سا لیک کرے تو وہ حسن کے کیٹیگری میں، حسن لذاتی ہی کی کیٹیگری میں نیچے آ جاتی، لائی کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ضبط کا معاملہ جس میں ہم نے یہ ایک حدیث کو دیکھا کہ محمد بن عمرو، یہ صدوق راوی ہیں، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ کنفیوژن ہوتا، تو ضبط کے معاملے میں تھوڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن لذاتی ہی تک آ جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث جو صحیح ہو یا حسن ہو اس کو سپورٹ کر دے اور سپورٹ کرنے کے بعد اس کو ایلیویٹ کر دیتی ہے دوسرے سند سے، تو یہ حسن لذاتی ہی کی حدیث صحیح لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ لغیر ہی سے مراد غیر کی وجہ سے، کسی دوسرے سند کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے۔ یہ ہم نے کل ڈسکشن کیا تھا۔ انشاءاللہ آج جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ ایک امپورٹنٹ درس ہے اس پورے سیریز میں، اور وہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں مردود کی کیٹیگری۔ ایک مردود میں 2 کیٹیگریز آتے ہیں، ایک ضعیف اور ایک موضوع۔ تو ہم آج ضعیف کو دیکھیں گے، موضوع کو نہیں دیکھیں گے۔ اور ضعیف اور موضوع میں بہت فرق ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ضعیف سنتے ہی ہمارے بھائیوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جہالت کی بنا پہ اسے ترنت ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ریجیکٹڈ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے کہ ضعیف احادیث کی کئی ٹائپس ہیں، اور ان میں جو کمزوری ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کسی میں بہت کم کمزوری ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اگر اس کو تھوڑا سا سپورٹ ملے تو وہ اس کی کمزوری دور ہو جائے۔ کسی میں بہت زیادہ کمزوری ہے کہ اور وہ من گھڑت تک کے فیبریکیشن تک کے فیبریکیٹڈ تک پہنچ جاتی ہے، تو جس کو آپ سپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ تو لیولز ہیں،
तो हम इसको बस एक सब्जेक्टिव टर्म है, आप इसको बस ऐसी यस और नो में जवाब नहीं दे सकते। मौदू के बारे में है कि मौदू फैब्रिकेटेड, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ गढ़ना जिसकी कोई सनद मौजूद ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 800 साल के बाद, 400 साल के बाद कोई आदमी खड़े हो कहे काला रसूल अल्लाह और अपनी से कोई बात गढ़ दे। जैसा कि हम देखते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल के वक्त में कई अहादीस को गढ़ा गया। जैसे एक इंसान है, वो ये कह रहा है कि जन्नत के फ़ज़ाइल को बयान कर रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल और यहया इब्न मईन मस्जिद में जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, इतना बयान कर रहा है कि वो 80 पेजेस में आ गए। तो पहले शक तो यहीं से आ गया कि इतना बड़ा किसी भी सही हदीस का मतन नहीं हो सकता। तो जब उससे पूछा गया कि ये हदीस तुमने कहाँ सुनी, तो उसने कहा कि मैंने इसे इमाम अहमद बिन हम्बल और यहया इब्न मईन से सुनी। तो यहया इब्न मईन ने कहा कि मैं यहया इब्न मईन हूँ और ये इमाम अहमद बिन हम्बल है, और हमने तो ये हदीस बिल्कुल भी तुम्हें नहीं सुनी। तो ये उसी वक्त पकड़ में आ गए। तो इस तरह से गढ़ी गई हदीसें, और जैसे उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा, और जन्नत में जो लोगों की ज़बान होगी वो अरबी होगी, इस तरह की। और एक बुढ़िया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचड़ा फेंकती थी, इस तरह की जो रवायत है वो मौदू है। तो इस पे बात हम नहीं करेंगे, मौदू पे बात नहीं करें, हम उस पे बात करेंगे, आज ज़ईफ पे बात करेंगे। ज़ईफ कब होता है कोई भी हदीस? मकबूल के कैटेगरी से तब कोई हदीस गिर जाता है कि इन 5 में से सनद और मतन मिला के इन 5 कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को अगर वो फुलफिल ना करें तो वो फिर मकबूल के कैटेगरी से नीचे गिर के ज़ोफ के कैटेगरी में आ जाता है। अब हम देखेंगे मरदूद किसे कहता है। मरदूद के अंदर ज़ईफ हदीस और मौदू दोनों आता है। तो इससे पहले हम एक बात जान लें कि ज़ईफ हदीस पे रूलिंग क्या है, इस चीज़ पे रूलिंग क्या है। रूलिंग का मामला यह है कि स्कॉलर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि हम ज़ईफ हदीस का इस्तेमाल यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। इस मामलात में मेजॉरिटी ने फ़ज़ाइल के मामलात में इसको अलाउ किया है, लेकिन थियोलॉजी के मामले में या हराम हलाल के मामले में या आप कहें शरीयत के मामले में इसे अलाउ नहीं किया मेजॉरिटी ने। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कंडीशन के साथ, 3 कंडीशन में, कि पहला कंडीशन ये है कि हदीस बहुत ज़्यादा वीक ना हो। आप समझ लें कि एक्सेसिवली वीक ना हो, बहुत ज़्यादा, उसमें कोई कज़्ज़ाब रावी ना हो, कोई झूठा ना हो, कोई झूठ ना हो, फैब्रिकेशन ना हो, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन फरमाते हैं, ये कहते हैं कि ये रिलायबल एविडेंस के तौर पे हम इसे एक्नॉलेज करें, इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एज रिलायबल एविडेंस। और थर्ड वन है, वन डज नॉट सपोज दैट बाय इट्स एप्लीकेशन इट्स स्ट्रेंथ इज एस्टेब्लिश्ड, इसके एप्लीकेशन से इसका स्ट्रेंथ इस्टेब्लिश हो जाता है। ये 3 कंडीशन इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। अब हम मरदूद की कैटेगरी में आते हैं। तो मरदूद ये वो ज़ईफ हदीस है जो रद्द की हो। रद्द की हो कब? जब आप ना पाएं कोई दूसरी हदीस इसके सपोर्ट में। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक ज़ईफ हदीस है और उसका सपोर्ट करने वाला, जैसे मैंने पहले फरमाया था, उसका सपोर्ट करने वाला कोई मौजूद ना हो। तो जब कोई सपोर्ट करने वाला मौजूद ना हो और ये ज़ईफ अकेला पड़ गया, तो ऐसे को हम मरदूद कहेंगे, रिजेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं कि 4 इंसान है, एक बहुत बहुत कमज़ोर है, मतलब कमज़ोरी के आला मेयार पे है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, एक की कमज़ोरी 5% है, एक की कमज़ोरी 20% है, एक की कमज़ोरी 35% के अप्रॉक्स है, और एक में 80% कमज़ोरी। तो आप देखें कि ये जो 5% वाला है, ये 20% वाला है, 5 वाले को हम थोड़ा सा अगर इसके ऊपर मेहनत करें, इसको सपोर्ट करें, तो ये अपने कमज़ोरी को दूर कर सकता है। लेकिन ये जो 80% है, ये जो 80% का मामला है, इसमें इतना कमज़ोरी का लेवल इतना ज़्यादा है कि कोई मदद नहीं की जा सकती इस तरह से।
तो अगर वैसे ज़ईफ़ रवायत जिसमें हम कोई सपोर्ट दें, मतलब कोई सपोर्ट ना दे पाएँ इस तरह से, तो उसको हम रिजेक्ट बोलेंगे। अगर कोई सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर मरदूद के कैटेगरी में वो ज़ईफ़ रवायत नहीं जाए। तो मरदूद समझ में आ गया कि मरदूद ये वो ज़ईफ़ रवायत है जो रद्द की हो, रिजेक्टेड हो, लेकिन सपोर्ट आ जाए तो फिर वो मरदूद के कैटेगरी से निकले, वो ज़ईफ़ हो जाएगी। उसे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसका रूलिंग इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। अब देखते हैं एक ऐसी ज़ईफ़ हदीस है जिसमें सही हदीस की 5 कंडीशन ना मिले। इससे पहले भी हमने इस बात को देखा कि जैसे ही इन 5 कंडीशन में कोई हदीस लैग कर जाए, जैसे कि ज़ब्त में पिछले बार हमने देखा कल कि ज़ब्त में थोड़ा सा लैग का मामला हुआ, 4.5 टोटल हुआ 5 में, तो ये सही से हसन में आ गए। उसी तरह अगर इन 5 में कोई कंडीशन ना मिले, पांचों में, जैसे इत्तिसालुस सनद, चेन ब्रेक हो, कैरेक्टर का मामला हो, ये तमाम चीज, कोई सपोर्टिव सनद भी ना हो, ऐसा हो कि कोई एक और सनद इसको सपोर्ट कर रही हो कि ये अच्छा आप भी हैं, जो आप बात बयान कर रहे हैं वो बात कोई और भी बयान कर रहा है, और वो सनद सपोर्टिव हो, सनद सही हो, तो हम कहेंगे कि बात तो बिल्कुल इन्होंने सही फरमाई, तो इसको एक सपोर्ट मिल गया फर्स्ट वाले को, तो वो भी मौजूद ना हो, तो वैसे को हम क्या कहेंगे कि ज़ईफ रिवायत। अब देखिए नोट, हमेशा ज़ईफ हदीस रद्द नहीं की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ आम लोगों में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, दोनों एक्सट्रीम पे, एक एक्सट्रीम पे और एक दूसरे एक्सट्रीम पे। पहले एक्सट्रीम वाले कहते हैं कि ज़ईफ ज़ईफ देखते ही रिजेक्ट, फिर उस पर वो तबसरा भी नहीं करते, उन्हें इल्म भी नहीं होता है कि ज़ईफ का जो ज़ोफ का कैटेगरी है वो किस लेवल पे है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता, वो ज़ईफ देखते रिजेक्ट। और दूसरा कैटेगरी होता है जो भी वो भी नहीं देखता है कि ज़ोफ का क्या लेवल है, और कहता है कि हाँ हम यूज़ कर सकते हैं, क्या मसला है ज़ईफ है तो दो एक्सट्रीम के बीच में हमें बीच का मामला तय करना है कि देखना है कि किस ज़ईफ को हम यूज़ कर सकते हैं और किस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। तो नोट जो है, जो हमें अपने जहनों में रखना वो ये है कि जो हमेशा ज़ईफ हदीस है वो रद्द नहीं की जा सकती। ज़ईफ होना इस बात पर दलालत नहीं करता है कि हदीस रद्द की जाए। थोड़ी सी कमज़ोरी अगर आ गई है किसी के अंदर, तो इस बात पर दलालत बिल्कुल नहीं है कि आप उसको रद्द कर दें, बल्कि अगर उस कमज़ोरी को कोई सपोर्ट कर दे, कोई सपोर्टर आ जाए, तो हम उसको कबूल कर लेते हैं। ये एक बेसिक आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है ज़ईफ हदीस के हवाले से। अब देखें कि रद्द की बुनियाद क्या होता है। इसको हम कह सकते हैं कि रिजेक्शन की बुनियाद क्या है, रद्द किस किस बुनियाद पे कहते हैं। तो दो हमने देखा था, एक सनद का मामला था और मतन। तो अभी हम जो ज़ईफ देख रहे हैं वो सिर्फ सनद के बेसिस पे देख रहे हैं। तो सनद के बेसिस पे तीन चीज थी, एक चेन का मामला था, इसमें मोरल कैरेक्टर ऑफ नैरेटर था, और थर्ड वन था ज़ब्त। तो जब चेन में ब्रेक हो, सनद में चेन में ब्रेक हो, किस में ब्रेक हो, चेन में, ब्रेक इन द चेन, सनद गिर जाए, रावी गिर जाए, रावी के साथ मसला हो, तो वैसा एक पहला बुनियाद बनता है। और दूसरा कि मोरल कैरेक्टर में डिफेक्ट हो या प्रिसीजन में, मोरल एंड ज़ब्त, ज़ब्त और अदाला में, मोरल कैरेक्टर और प्रिसीजन में अगर नैरेटर के डिफेक्शन हो, मसला हो, तो इस बुनियाद पर हम किसी भी हदीस को रद्द करते हैं। तो दो बुनियाद हैं, एक उसके चेन के साथ और दूसरा मोरल कैरेक्टर और प्रिसीजन के साथ का मामला है। ये देख सकते हैं आप, सही एक हदीस है, इत्तिसालुस सनद इसकी पहली कंडीशन है, अदालतुर रवा इसकी दूसरी कंडीशन है, ज़ब्तुर रवा इसकी तीसरी, और ये मतन के एतबार से 4 और 5। तो अब देखें कि इत्तिसालुस सनद, सनद में अगर ज़ोफ आ जाए, ज़ोफ बिसबब सख्त फिल इस्नाद, इस्नाद में अगर ब्रेक हो जाए, तो इस बुनियाद पर जो ज़ईफ कैटेगरीज बनेंगी वो दो बनेंगी, एक है सख्त ज़ाहिर और दूसरा है सख्त खफी। मतलब कि एक क्लियर ब्रेक हो जाए या एक हिडन ब्रेक हो। उसी तरह से अगर मोरल कैरेक्टर और उसके ज़ब्त में वीकनेस आ जाए, तो उस बुनियाद पर तान फी ज़ब्त और तान फी अदाला की बात के बारे में बात करेंगे हम। तो अभी हम बस इसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह जब इसके बारे में आएंगे तो इसको भी देखेंगे।
تو چین آف نیریٹر میں اگر بریک آ جائے، نیریٹرز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مصنف، ایگزامپل دے رہے ہیں، اور مصنف جس نے حدیث کی کتاب یا حدیث کو جمع کیا ہے، اس کے درمیان جو نیریٹرز ہوں، یہ فار ایگزامپل نیریٹرز، یہ ان کے استاد ہے، یہ ان کے استاد ہے، یہ ان کے استاد ہے، ایک تابعی ہے، یہ صحابہ کا معاملہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کہیں بریک آ جائے کہیں پہ بھی، تو اس بنیاد پر جو ویکنیس ہے وہ دو طرح کے، ایک ہے ہڈن بریک جس کو ہم کہتے ہیں سخت خفی، جو تدلیس کا ہے، جو ہم آج انشاءاللہ نہیں دیکھ رہے ہیں. آج جو ہم بات کریں گے وہ کلیئر بریک کے بارے میں بات کریں گے، سخت ظاہر، کہ اس چین بریک ہونے کی بنیاد پر جو ٹائپس بن رہے وہ کون کون سے ہیں. تو پہلے نمبر پہ ہے مرسل، منقطع، معضل اور معلق. انشاءاللہ ہم چاروں کو ایک ایک کر کے اس کے اندر اس کا ایکسپلینیشن دیکھیں گے، کس بنیاد پر یہ ضعیف ہے، کہاں پہ بریک ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اس پہ حکم کیا لگتا ہے، اس پہ بارے میں بات کریں گے. تو یہ ویکنیس ان حدیث کے بارے میں ایک بیسک انٹروڈکشن جو ہمیں سمجھ میں آیا. اب جیسے میں ایک بار پھر سے آپ سے کہہ دوں کہ جو سند ہے وہ ایک بار آپ اچھے سے دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا ہوگا؟ کسی نہ کسی صحابی نے سنا ہوگا. صحابی سے کس نے سنا ہوگا؟ کوئی تابعی نے سنا ہوگا. تابعی سے کس نے سنا ہوگا؟ تبع تابعی نے سنا ہوگا. اس سے کسی اسکالر نے سنا ہوگا، مان لیتے اسکالر 1، اسکالر 2، اور یہاں مان لیتے ہیں ہم مصنف. ایگزامپل دے دیا آپ کو، جس نے کتاب کو لکھا ہے، صاحب کتاب جمع کیا ہے. اب دیکھیں کہ ان میں سے کہیں پہ بھی کسی بھی ایک جگہ پہ بریک ہو جائے، بریک سے مراد ہے کہ یہ جو تسلسل قائم ہے، یہ جو کنٹینیوٹی قائم ہے، یہ کنٹینیوٹی میں کسی بھی طرح سے خلل پڑ جائے تو ویسے کو کہیں کہ ہم چین میں بریک. جیسے کہ یہ جو مصنف ہے، مصنف اپنے شیخ سے سنا ہو لیکن وہ جو درج بات ہو وہ ڈائریکٹ پہنچ جائے تبع تابعی کے پاس، ان دونوں کو وہ بائی پاس کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ دیر از اے کلیئر بریک. کیوں؟ کیونکہ اصولاً مصنف کو S2 کے پاس جانا تھا. جیسے تابعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابی کو سنے، اصولاً یہی ہے. لیکن اگر کوئی تابعی ڈائریکٹ کہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ ممکن نہیں ہے، ناٹ پاسبل کہ کوئی تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابی کو بائی پاس کیا گیا، حذف کیا گیا. تو یہاں پہ ایک کلیئر بریک ہے. یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو ہمیں اصل میں اسی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ بریک ادھر ہے کہ ادھر ہے، کہاں پہ ہے، اور کتنے بریکس ہیں، اس بنیاد پہ کیسے کیٹیگرائزیشن کیا گیا. تو مصنف کی طرف سے جو چین ہوتا ہے اس کو ہم ابتدائی سند کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہم کوئی حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں مصنف کہتا ہے پہلے حدثنا، میں نے اپنے استاد سے سنا، تو یہ ابتدائی سند کہتے ہیں جہاں پہ مصنف کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے اینڈ پہ مصنف ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابتدائی سند. اب ہم اس کے پہلے کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو کہتے ہیں معلق. معلق کو اگر لغت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ لٹکانا. فار ایگزامپل یہ چھت ہے، چھت پہ اپنے فین لٹکایا، تو آپ دیکھیں کہ یہ فین ایک چیز ہے، اس کو کسی دوسرے چیز سے ہم نے لٹکایا، یہاں پہ یہ جوائنٹ ہے چھت سے، تو چھت کے ساتھ جوائنٹ ہونا ضروری ہے. اور یہ زمین ہے، تو زمین سے جو فین
का मामला है वो है क्या कि ब्रेक है। तो मुअल्लक इस्तिलाहन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मुअल्लक कहते हैं कि ये वो हदीस है जिसमें हदफ किया जाए इब्तिदाई सनद से। कहां से? इब्तिदाई सनद। जैसे हमने अभी देखा इब्तिदाई सनद किसको कहते हैं? मुसन्निफ की तरफ से, जो राइटर है उसकी तरफ से। तो यहां देखिए कि अगर हम इसको कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर का ये ये एंड है और ये एंड मुसन्निफ का एंड है, तो आप देखें कि यहाँ ज्वाइंट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट होना जरूरी है, लेकिन ब्रेक यहाँ हो मुसन्निफ की तरफ से इब्तिदाई सनद के साथ। तो ऐसे हदीस को हम क्या कहेंगे कि ये असल में मुअल्लक हदीस है। चेन मिसिंग हो, टोटली मिसिंग चेन। 400 साल के बाद, 500 साल के बाद कोई कहे क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप देखें कि 400 साल का गैप आ गया, एक 4 जनरेशन का, 5 जनरेशन का। आज का कोई इंसान उठ के खड़े हो और कहे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया। कई फितने उठे हैं ऐसे हिंदुस्तान में भी, बर्रे सगीर में, कि लोग कहें कि मैं सहाबी हूँ, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया। अब देखिए कि 1400 साल के बाद ये कह रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है और उसूलन ये रिजेक्टेड हो जाता है। तो अब देखिए इस बात को ऐसे समझिए मुअल्लक को कि ये मुसन्निफ है, ये मुसन्निफ ने जिनसे हदीस सुनी उनके शेख हैं, शेख के जो शेख हैं ये हैं, ये कोई और स्कॉलर एग्जाम्पल मानते हैं, फिर ये ताबई हैं, ताबई ने सहाबा से सुना, सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो यहाँ का जो मामला है वो ज्वाइंट होना चाहिए। इब्तिदाई सनद इसको कहते हैं। ब्रेक यहाँ होना चाहिए। मुसन्निफ कल को ये कह दे कि मैंने तबे ताबई से सुना, ये अपने शेख और उनके शेख और उनके शेख को बाईपास करते हुए, या मुसन्निफ कह दे कि मैं ताबई से सुना, या मुसन्निफ डायरेक्ट सहाबा का नाम ले ले, तो जितना ज्यादा ये गैप बढ़ेगा मुसन्निफ और उससे दूर होता जाएगा, उतना ज्यादा इस पे मसला होता जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से क्लियर ब्रेक दिख रहा है कि बाईपास किया जा रहा है शेख को, उनके शेख को, ताबेइन को, तबे ताबेइन को। तो ये मुअल्लक की एक कैटेगरी है जो कि कहा जाता है कि कमज़ोर हदीस की कमज़ोरी का सबसे ज़्यादा कमज़ोरी इसमें पाई जाती है। ऊपर याद रखिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी, ये मुअल्लक की एक पहचान है, और नीचे से उसमें मामला आता है। मिसाल, जैसे हम मिसाल ले रहे हैं, और इसकी वजह क्या है कि अब जो जरा तादील के जो उलेमा हैं, जो नैरेटर्स को परखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो बंदा था ये कौन है, मुझे तो नहीं पता, इसके बारे में इसके बारे में चीजें मजहूल हैं, ये है कौन, इसका अदाला कैसा है, इसका जब्त कैसा है, क्या ये कज़्ज़ाब तो नहीं है, तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जब हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इस बुनियाद पर उसूलन ये हदीस पे हुक्म जो लगेगा वो क्या लगेगा, ये हदीस ज़ईफ है। इल्ला के कोई ऐसी हदीस जिसका सनद स्ट्रांग हो, हसन हो, वो आए और ये कहे कि वही मतन बयान कर दे और कहे कि मतलब जो पिछले मुसन्निफ ने था उन्होंने हो सकता है कि बयान ना किया हो, लेकिन उसके सपोर्ट में कोई आ जाए तब इसको कबूल किया जाएगा। लेकिन उसूलन क्या हुक्म लगेगा, ज़ईफ का हुक्म लगेगा, जब तक कोई दूसरी सनद आके इस गैप को फिल ना करती। ये जो गैप बन गया है, फॉर एग्जांपल ये देख रहे मुसन्निफ और ताबई के बीच में, या मुसन्निफ और तबे ताबई के बीच में जो गैप बन रहा है इतना ज़्यादा, इस गैप को कोई दूसरी सनद आके फिल ना करते। तो जब तक कोई दूसरी सनद आके फिल नहीं करते हैं इस गैप को, तब तक ये हदीस क्या होगा, ये हदीस हम कबूल नहीं करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एक बात कि अगर ये जो गैप फिल हो रहा है, कोई दूसरी सनद आए और दूसरी सनद में वही सहाबा मौजूद, वही सहाबी मौजूद हो, अगर सहाबी वही हो तो हम उसको ताबे बोलेंगे उस रिवायत।
اور اگر صحابی وہ نہ ہو تو ہم اس کو شاہد کہیں گے. پھر اس کے بعد ہم تحقیق میں لائیں گے، اس کو فردر ایگزامین کی ضرورت ہوگی، اسکالرس پھر اس کو ایگزامین کریں گے. اب جیسے ایک مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں، قال ابو موسیٰ، بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو موسیٰ بیان کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہے. اور مصنف سیدھا کہاں پہنچ گئے؟ صحابی کے پاس. یہ بیچ میں تمام کیا ہو گیا؟ یہ ایک گیپ کریٹ ہو گیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے معلق کا. ایک اور بات کہتے ہوئے چلیں کہ معلق کے اعتبار سے جب ہم پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری میں معلق حدیث ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ امام بخاری اتنے جینیس رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی بھی چیپٹر کا جو باب باندھتے تھے وہ حدیث کے متن سے ہی باندھتے تھے. متن آف حدیث، وہ متن لیتے تھے بغیر سند کے. سند کو نہیں لیتے تھے، متن لیتے تھے بغیر سند کے. تو اس بنا پہ کوئی یہ کہے کہ یہ معلق ہے کہ انہوں نے تو لیا ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ حدیث کی کتاب دیکھیں، بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین ہے، امام نووی کی 40 حدیث ہے. اس میں بھی جب آپ حدیث دیکھیں گے تو اس میں بھی سند نہیں ہے، سند نہیں لیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے ریفر کیا ہے دوسری بک کو وہاں پہ. تو اس بنیاد پہ کوئی معلق کہے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو سمجھنے میں دقت ہے. اور ہم ایک اور بات یہاں پہ لیتے ہیں کہ صحیح البخاری کے اندر جو معلق بیان کیے گئے، یہ جو اس کے چیپٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ کیا ہے، اس پہ اجماع، اس پہ کیا حکم ہے؟ اس پہ یہ ہے کہ امت کے نزدیک کہ معلق جو بخاری ہے وہ صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حجر نے ایک کتاب ہی لکھی ہے جو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں بخاری کے تمام معلق حدیث جو بھی اس نے چیپٹر میں جمع کیے ہیں ایز اے باب کے نام کو، وہ تمام کو جمع کیے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اس کے سند کو اس کو جوڑے. تو بخاری اور مسلم کے حوالے سے جو بات ایسی حدیث آتی ہے معلق، چاہے چیپٹر کے نام کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئے، تو وہ تمام صحیح ہے. یہ ہمیں اگر کوئی کبھی ہمیں مطلب کنفیوز کرنے کے لیے یہ بات کہے تو ہم اس کا جواب اس طرح سے دیں کہ وہ چیپٹر کا نام کو انہوں نے لیا ہے، اور دوسری بات کہ اس کی سند دوسری جگہ صحیح تمام موجود ہیں جس بنیاد پر وہ صحیح ہے. اب جو دوسرا کیٹیگری ہے وہ ہے مرسل. مرسل آپ سمجھے کہ لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی کو آزاد کرنا. کوئی آپ کے پاس تھا، پہلے آپ کے اندر تھا، آپ کے انڈر، آپ نے اسے آزاد کر دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. جیسے کسی کو بھیج دینا اپنے پاس سے، یا کسی کو چھوڑ دینا. جیسے اگزامپل لیتے ہیں ہم کہ آپ نے کسی کو طلاق دیا کسی خاتون کو، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی خاتون کو اپنے نکاح سے آپ نے کھلا چھوڑ دیا. تو یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، کسی کو آزاد کرنا. لیکن ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں، اصطلاحی معنی میں ہم دیکھیں گے یہ وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ سند کے دو قسم تھے، ایک ابتدائی سند اور ایک آخر سند ہو. ابتدائی میں مصنف اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخر میں راوی گر جائے تو آخر میں کون راوی ہے؟ صحابی. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ صحابی جوائنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اگر صحابی گر جائے تو ویسے حدیث کو ہم کہیں گے کہ ویسی حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر میں راوی گر جائے.
مطلب تابعی کے بعد والا جو راوی ہے. یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ نبی آخر میں جو راوی ہے، اور یہ تابعی. تابعی کے بعد والا جو راوی ہے یہ گر جائے تو ہم کہیں گے کہ ایسی حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے. جب یا ایک اور ڈیفینیشن لے کہ کوئی تابعی یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اسے کہنا چاہیے تھا بیچ میں صحابی کا نام، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے. اب تابعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جس نے ملاقات کی ہو کسی صحابی سے اسلام کی حالت میں، اور موت بھی اسلام کی حالت میں ہی ہو. سمجھے؟ اسلام کی حالت میں ملاقات اور اسلام کی حالت میں موت ہوا، اس کو ہم کہیں گے تابعی. ایسے کیوں اس پہ بہت زیادہ تھا؟ کیونکہ اس دور میں کئی فتنے بھی کھڑے ہو گئے تھے، تو ان کا انتقال بھی اسلام کے حالت میں ہی ہوا. اب تابعی کے بھی 3 کیٹیگری ہیں. ارلی جنریشن آف تابعی، مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے جسٹ بعد کچھ تابعی، ارلی جنریشن. کئی ہے جن کی، جیسے الحسن البصری ہے، سعید ابن مسیب ہے، ان کی جو ان کا جو پورا زندگی شروعاتی گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی، تو یہ ہر صحابہ سے ہی، تمام صحابہ سے ان کا مطلب 40-50 سے زیادہ سے ان کا تعلق رہا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سیکنڈ جنریشن آف تابعی، جس کو ہم کہتے ہیں مڈل جنریشن تابعی. اور پھر تھوڑا اور وقت گزرنے کے بعد تھرڈ جنریشن آف تابعی، جس کو کہتے ہیں لیٹر تابعی، جس میں قتادہ، الزہری، یہ تمام لوگ آتے ہیں. تو تابعین کے بھی کیٹیگریز ہیں. جب انشاءاللہ ابھی ہم آگے حکم دیکھیں گے تو حکم میں یہ چیز بہت کام آنے والا ہے. تو کوئی حدیث جب مرسل ہو تو اس میں حکم کیا لگے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تابعی کس جنریشن کے. تو اس پہ بھی ہمیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے. ارلی جنریشن سے رہیں گے تو زیادہ کمپینینز کے ساتھ وقت گزرا ہوگا. لیٹر جنریشن کے ساتھ رہیں گے تو کم کمپینین کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہوگا. جیسے میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں. ہم مثال لیتے ہیں عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق یہ بیان کرتے ہیں عبد الرزاق سے، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں. ان ابی جریج کہ یہ رپورٹڈ ہے کس نے بیان کیا؟ ان سے بیان کیا جاتا ہے. کس سے بیان کیا جاتا ہے؟ ابن جریج سے. وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹڈ فرام عطا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں کہ عطا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. کون بات کر رہا ہے؟ عطا. تو جب ہم عطا کے اوپر دیکھیں گے تو عطا صحابی نہیں ہے، عطا تابعی ہے. اور تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا نہیں نیریٹ کر سکتے، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بیچ میں ایک صحابی رہے ہوں گے، اور صحابی رہے ہوں گے، ان کو حذف کیا گیا ہے. تو اس کنڈیشن کے اعتبار سے، مرسل کے اس کنڈیشن کے اعتبار سے کہ تابعین ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیریٹ کریں صحابی کو چھوڑ کے، تو ویسے کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں مرسل. تو اس بنیاد پر یہ جو حدیث ہے یہ مرسل کے کیٹیگری میں. کس کے کیٹیگری میں؟ مرسل کے کیٹیگری میں، کیونکہ یہاں پہ صحابی مسنگ ہے. اور یہ عطا جو ہے یہ کبار
ताबीन में से हैं और ये सिका रावी हैं। सिका रावी कहते हैं कि जो जिनका कैरेक्टर ज़ब्त ये काबिल कबूल है, मकबूल हो। यहाँ पे सख्त हो रहा है, सख्त मतलब ब्रेक हो रहा है। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? अता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, ये सहाबी का मामला, ये ब्रेक हो रहा है। अब इसमें दो कंडीशंस आते हैं। इस पे एक रूलिंग याद रख लीजिए, एक रूल है। रूल ये क्या है? सारे सहाबा आदिल हैं, मतलब कि सहाबा के मोरल और ज़ब्त पे हम शक नहीं करेंगे, वो मकबूल है, पहले से आदिल है। तो ये बात आ सकती है कि अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अता भी सिका रावी है और बीच में सहाबी ही होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई ये कहे कि सहाबी तो आदिल हैं सारे, तो सहाबी के बारे में तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और अता भी सिका रावी है, तो सिका रावी एक सिका रावी से ही सुने होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ, तो क्यों इसे आप मुरसल की कैटेगरी में डाल रहे हैं? क्यों उसूलन ज़ईफ हो रहा है? तो अब हम ये कहेंगे कि इस पे दो कंडीशन बनती है। पहली कि मुमकिन है अता ने सहाबी से सुना हो, ये मुमकिन है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि हमें ये पता चल गया कि अता ने सहाबी से सुना हो, तो फिर हम उसको चेक नहीं करेंगे, बल्कि ये हदीस सही हो जाएगी। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि अता ने किसी दूसरे ताबी से सुना हो और हम उस ताबी को नहीं जानते हैं, क्योंकि सहाबा आदिल है, ताबी तो नहीं है, तो हम उस ताबी को नहीं जानते हैं। इस ताबी का जो कैरेक्टर है वो मजहूल है, हमारे पास क्लियर नहीं कि कौन ताबई है, कैसे ताबई है, हमें इनके बारे में तो नहीं पता है। तो अब यहाँ पे डॉट राइज हो रहा है, यहाँ पे मसला हो रहा है। तो अब यहाँ पे कंडीशंस लगेंगे। अब हम सीधा नहीं कहेंगे, ये जो इश्काल था, ये जो सवाल था, उसका जवाब ये दे दिया गया कि अगर पहले कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो सही है। लेकिन हो सकता है ये अपने किसी साथी से सुना हो, किसी ताबई से सुना हो। तो अब किसी साथी से सुना हो और ताबई से सुना हो और हमारे पास उनका कैरेक्टर मजहूल है, जब तक कि उस पर रिसर्च हो और ये ना पता चले कि ये बीच वाला बंदा कौन था, ये कौन ताबई है, उनके ऊपर क्या है मामला, मकबूल है, कज़ाब का मामला, क्या मामला है, तो उसके बाद फिर कोई हुक्म लगेगा। तो अगर उसूलन आप हुक्म पूछें, उसूलन, तो उसूलन यहाँ पे हमें साफ ब्रेक दिख रहा है। अतः ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया और यहाँ पे एक सहाबी, तो उसूलन हम कहेंगे कि ये मामला ज़ईफ है एहतियातन, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का मामला है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का मामला होता है, एक हदीस है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानबूझकर या जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ गढ़ा, झूठ, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में किया। तो एहतियातन के तौर पर, एहतियात के तौर पर हम तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक के सपोर्ट ना मिल जाए कोई। अब सपोर्ट किस फॉर्म में होगा, ये फिर अभी डिटेल डिस्कशन होगा इंशाल्लाह। आगे हम देखते हैं कि सपोर्ट किस किस फॉर्म में हो सकता है। अता काबिल एतमाद है, लेकिन अता ने किससे सुना? फॉर एग्जाम्पल कोई भाई है अब्दुल रहीम, वो मेरे लिए काबिल एतमाद है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, 5 वक्त नमाज बहुत अच्छे से, मुझे उनको उनके उनके कैरेक्टर पे कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने किससे सुना है ये मुझे क्लियर नहीं है। ये इंसान जो मजहूल है, तो जब तक मुझे ये ना क्लियर हो कि ये कौन है, तब तक कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो अब हुक्म क्या लगेगा मुरसल पे? उसूलन कैसे ज़ईफ है ये समझना आपको है कि 5 में से पहला कंडीशन इत्तिसालुस सनद का मामला जो है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा।
5 में से पहले कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जा रहा। अब हुक्म क्या लगेगा? उलमाए मुहद्दिसीन ने मुरसल के हिसाब से क्या हुक्म बयान किया है? क्या इससे हुज्जत लिया जाएगा? हुज्जत से मुराद क्या इससे हुक्म लिया जाएगा? क्या दलील ली जाएगी? ये डिटेल्ड डिस्कशन है आगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि ब्रेक है दूसरे किस्म के ब्रेक से, मतलब पहला ब्रेक नहीं है और ब्रेक सहाबी पे से हो रहा है, तो एक अलग किस्म का ब्रेक है। और सहाबा तमाम के तमाम आदिल हैं। जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा तमाम के तमाम आदिल हैं, बेहतरीन लोग हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे दौर के लोग। और ये वो जनरेशन है जो आप कह सकते हैं ट्रांसमीटर जनरेशन है, उम्मत तक जो कुरान आया है, जो सुन्नत आई है, तो इस जनरेशन के थ्रू हो के आया है, सहाबा के जनरेशन। तो इस पर अगर शक करे कोई तो फिर पूरी शरीयत पे शक का मामला आ जाएगा। तो सहाबा तमाम के तमाम आदिल हैं, ये बात समझ में। तो असल में टेक्निकल मुरसल ज़ईफ है। क्यों? एहतियात है कि कबूल ना करें जब तक सपोर्ट ना मिले। अगर मिसिंग सहाबी हैं, जैसे अभी हमने पहले देखा, तो हदीस सही है। अगर मिसिंग सहाबी के बगैर कोई और है तो फिर सही नहीं है, हम उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब क्या मुरसल से हुज्जत लिया जाएगा, हुक्म लिया जाएगा, क्या दलील ली जाएगी? तो इसमें 3 बड़े अक़वाल नजर आते हैं उम्मत के। एक ज़ईफ मरदूद है, एक कौल है ज़ईफ मरदूद है, और ये जमहूर की राय, जमहूर मुहद्दिस है कि रावी गायब है बीच से, और उसके हाल से उसका हाल मजहूल है, हमें नहीं पता, तो एहतियातन हम हदीस नहीं लेंगे। ये एक कैटेगरी है, पहला कौल है, लेकिन ये कौल उम्मत में कबूल नहीं। दूसरा कौल है कि मुरसल सही है और उससे हम हुज्जत लेंगे। ये है इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। इन तीनों का ये मजहब है कि मुरसल से सही है और हम उससे हुज्जत लेंगे, लेकिन कंडीशन है, शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि इरसाल करने वाला रावी, इरसाल करने वाला इसको कहेंगे, आप देखें यहाँ पे, ये ताबई जिसने इरसाल किया है, जिसने सहाबी को हदफ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट, तो इरसाल करने वाला रावी मतलब ताबई सिका होना चाहिए। पहला कंडीशन कि वो सिका होना चाहिए। सिका मतलब मकबूल, कैरेक्टर और ज़ब्त के एतबार से। तो पहला कंडीशन है कि जो रावी इरसाल कर रहा है वो खुद में सिका स्ट्रांग होना चाहिए, और जब रिवायत करता है तो सिका से ही करता है, और जब भी वो रिवायत करे तो वो सिका से ही रिवायत करे। ऐसा ना हो कि किसी ज़ईफ से रिवायत कर दे, किसी कज़्ज़ाब से रिवायत कर दे, हमेशा सिका से ही रिवायत करे। तो ये शर्त अगर जब मुकम्मल हो तो हम कहेंगे कि जो ताबी होगा पहले वो सहाबी से करे, सिका हो और सिका से ही रिवायत करे, तो ऐसे को हम कबूल करेंगे। किसके नज़दीक में है? इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक। अब जो तीसरा कौल है और जो उम्मत के नज़दीक काबिल कबूल भी है, वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और कुछ अहले इल्म का है। इसे इमाम शाफई ने अर्रिसाला में बयान किया कि हम कबूल करेंगे, लेकिन शुरूत के साथ। कंडीशंस उन्होंने लगाए हैं। क्या कंडीशंस लगाए हैं? अब हम उस पर गौर करते हैं। 4 शुरूत उन्होंने लिया है। कितने लिए हैं? 4 शुरूत। 4 क्या क्या है? 3 का ताल्लुक रावी से है, मतलब जो नैरेटर्स हैं उससे ताल्लुक है, और एक का हदीस मुरसल के साथ है, कि मतलब इसको कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब पहला कंडीशन हम देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है? कि इरसाल करने वाला आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी और यहाँ पे ताबई हैं, तो ताबई डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करे तो ये इरसाल करने वाले अर्ली जनरेशन में से हो,
ना सेकंड जनरेशन ना थर्ड जनरेशन, मतलब अर्ली जनरेशन किबार ताबीन में से हो, जैसे सईद इब्ने मुसैयब, हसन अल बसरी, अता, मुजाहिद, इनमें से हो। पहला कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए। दूसरा, जब पूछा जाए कि आपने किससे बयान किया है तो वो सिका रावी का नाम ले। मतलब जब भी उनसे पूछा जाए कि आपने किससे बयान किया है, ये हदीस आप जो बयान कर रहे हैं वो किससे बयान कर रहे हैं, तो ये जो तब नाम ले वो सिका रावी का नाम ले। खुद में सिका हो, खुद में अगली जनरेशन से हो, और बयान भी सिका से कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरा ये है, जब दूसरे स्ट्रॉन्ग इस्नाद के साथ कोई हदीस बयान हो तो उसकी मुखालफत ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक बात की गई है, सहाबी ताबी, एक ये सनद है, और एक और मान लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की गई है, कोई सहाबी है और कोई ताबी है, ये दूसरी सनद है, और ये दूसरी वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो ताबी हैं और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, ये मुरसल अगर इसके मतन से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, स्ट्रॉन्ग से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, तो हम कबूल नहीं करेंगे। तो कबूल की जो तीसरी शर्त वो है कि कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, मुखालफत ना हो, इसकी तायीद ही हो, कोई मुखालिफ स्ट्रॉन्ग आके इसको मुखालिफ ना करे। और फोर्थ वन जो है, जो हमने कहा कि तीन हो गया हमारे किसके ताल्लुक से, रावी के ताल्लुक से, और एक किसके ताल्लुक से, हदीस मुरसल। उसमें क्या कैटेगरीज है, उसमें 4 कैटेगरीज है। उसमें 4 कैटेगरीज है। पहला, ये मुरसल हदीस दूसरी सनद से भी हमारे पास आनी चाहिए। क्या मतलब कि ये मुरसल हदीस दूसरी सनद से भी हमारे पास आनी चाहिए, से मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कोई मुरसल वन है, मान लेते हैं ए बी, फॉर एग्जाम्पल मुसन्निफ, और यहाँ पर डी ई एफ, तो सनद वन, सनद टू, तो एक तो दूसरी सनद से भी हमारे पास आनी चाहिए। मतलब ये जो रिवायत है ये तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोई और सनद हो उससे भी ये बात, यही मतन हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। मतलब कोई सपोर्ट में हो, अगर कोई सपोर्ट में नहीं होगा तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हम कबूल नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई। दूसरा कि दूसरी सनद वो अलग हो, इंडिपेंडेंट। जैसे ये ए बी सी आप देख रहे हैं, यहाँ पे डी ई एफ है, तो ये ऐसा ना हो कि डी ने ए से बयान किया, ई ने बी से बयान किया, ऐसा नहीं हो, बल्कि इंडिपेंडेंट हो, दूसरी हो, दूसरी सनद हो, अलग हो। तो दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन क्या है कि किसी सहाबी का कौल मौजूद, मतलब कि एक मुरसल हदीस है आपके पास और उसके तायद में उसी मतन में किसी एक कौल सहाबी मौजूद, किसी सहाबी की का कौल मौजूद हो। फिर कोई अहले इल्म ने फतवा दिया, आज के अहले इल्म नहीं, कोई अहले इल्म ने फतवा दिया, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन बनता है कि अगर मुरसल हो, मैंने अभी देखा, और मुस्नद, मुस्नद कहते हैं जिसका चेन कनेक्टेड हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक या सहाबी तक। जैसे मुसन्निफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, तो चेन तसलसल के साथ कंटिन्यूअस कनेक्टेड, तो ऐसे हदीस को हम कहते हैं मुस्नद। तो कोई मुरसल हो और साथ में मुस्नद आ जाए, जैसे हमने पहले कंडीशन में देखा कि किसी और सनद से इसको सपोर्ट मिल रहा। दूसरा, मुरसल हो और एक और मुरसल आ जाए, लेकिन सनद सही हो, हदीस सही अलग बात है। सनद सही का मतलब हो गया कि इसमें जो नैरेटर्स हैं वो सिका हो, ज़ईफ रावी ना हो। तो ये जो मुरसल है, और 2 मुरसल मिलके सही तब बनेगा जबकि
सनद सही, फिर कोई मुरसल हो और उसके तायद में कोई कौल सहाबी मौजूद हो तो भी वो सही होगा। कोई मुरसल हो और उसके उस ज़माने में किसी उलमा का फतवा, अहले इल्म का फतवा मौजूद हो उसके तायद में, तो वो जाके क्या बनेगा, इस सही सही होगा। और यही उम्मत के अंदर यही बात काबिल कबूल है, ये 4 कंडीशन। तो अब हम देखें कि इनमें से 4 में से पहले 3 कंडीशन, पहले 3 कौन कौन कंडीशन है का, इरसाल करने वाला ताबी अगली जनरेशन से हो, जब पूछा जाए किससे बयान किया तो सिखा का नाम ले, और कोई स्ट्रॉन्ग से मुखालफत ना होती हो, और ये 4 में से कोई एक कि मुरसल को कोई और सनद भी मिली, दूसरी सनद अलग हो, सहाबी का कौल हो, अहले इल्म ने फतवा दिया हो। तो ये कंडीशन जब फुलफिल करेंगे तो हम ये कहेंगे इमाम शाफी और अहले इल्म के नज़दीक कि ये मुरसल काबिल कबूल है, और ये उम्मत के अंदर यही एक काबिल कबूल बात है, ये कंडीशंस के साथ। अब जो तीसरा कंडीशन है, तीसरे कंडीशन जो है वो तीसरा कंडीशन क्या है, मुअज़्ज़ल। हमने 2 देख लिया, मुअल्लक और मुरसल, अब है मुअज़्ज़ल। लुगत के एतबार से देखें तो जो मामलात आते हैं वो आते हैं थका देने के हवाले से, थका देना। लेकिन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, इस्तिलाही माने में, ये वो हदीस है जिसकी इस्नाद में, सनद में रावी गिरा हो, 2 या उससे ज्यादा। मतलब अभी तक हम देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, ताबई, तबे ताबई, मुसन्निफ। अगर इब्तिदाई सनद से मुसन्निफ की तरफ से रावी गिर जाए तो हम उसको कहते थे मुअल्लक, और ऊपर से सहाबी अगर गिर जाए तो हम कहते हैं मुरसल। लेकिन अब ये कहा जा रहा है अब क्या कहा जा रहा है कि कंजिक्यूटिव, पे दर पे, मतलब के ताबई और तबे ताबई, या तबे ताबई या कोई स्कॉलर पे दर पे 2 या 2 से ज्यादा गिर जाए तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, मुअद्दल। ये थर्ड कैटेगरी है। हुक्म क्या लगेगा, ज़ईफ। क्यों लगेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये पहले कंडीशन को, इत्तिसालु सनद में जो कंटिन्यूअस होना चाहिए चेन, वहां पे ये ब्रेक हो रहा है 2 से ज्यादा। ताबीन और सहाबी मिसिंग हो, कोई सपोर्टिव एविडेंस ना मौजूद हो तो ज़ईफ है, या ताबीन और तबे ताबीन मिसिंग है। तो ये एक जनरल फतवा है, मतलब हुक्म है मुअद्दल के ऊपर कि ये ज़ईफ है। क्यों, 2 से ज्यादा और पे दर पे गिरना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी, मतलब कि कंसेक्यूटिव गिरना चाहिए, मतलब एक उसके जस्ट बाद 2। तो वैसे को हम क्या कहेंगे, मुअद्दल कहेंगे। इसकी मिसाल लेते हैं कि हदसना वकी, इसकी मिसाल हम ले रहे हैं कि हदसना वकी, मुसन्निफ कह रहे हैं कि हमसे वकी ने कहा, क़ाला अखबरना अबू इसराइल, कि उन्हें खबर दी अबू इसराइल ने, अन के बयान किया जाता है, कौन बयान करते हैं, मूसा। मूसा बयान करते हैं और कह रहे हैं क़ाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात आ रही है मूसा। क्या बयान आ रही है, मूसा किसके अथॉरिटी में कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मूसा है, ये जो मतन है, इसका मतन से हम सनद देख रहे हैं, मतन ये है कि ये उम्मत तब तक खत्म नहीं होगी खैर पर जब तक वो अपनी मस्जिदों में मेहराब ना बना ले, जैसे नसारा के यहाँ मेहराब का मतलब वो राइज था। तो अब हम देखते हैं कि जो मूसा है, ये इनकी जो ज़माना 144 आफ्टर हिजरी में इनका इंतकाल, 144 आफ्टर हिजरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 144 ईयर। और
इमाम शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़इन मूसा, मूसा के बारे में कि वह हुआ इब्ने अब्दुल्ला, ये इब्ने अब्दुल्ला इनका नाम है, क्या नाम है, इब्ने अब्दुल्ला, और ये रिवायत करते हैं किससे, ताबईन से, हमेशा किससे रिवायत करते हैं, ताबईन से। उसकी मिसाल अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, मुजाहिद, नाफे वगैरह। तो ये जब भी रिवायत करते हैं वो किससे करते हैं, ताबईन से। तो अब देखिए ताबे से हमेशा कौन रिवायत करता है, कौन करता है, तबे ताबे, तबे। फिर यहाँ सहाबी, फिर यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है असल, ये होना चाहिए। ये दलील के साथ हमें मिल गए, मूसा के बायोग्राफी में जाने के बाद पता चला कि ये कौन है। ये जब भी इसने रिवायत की वो हमेशा ताबईन के हवाले से रिवायत की। तो अब हम देखेंगे कि यहां लेकिन ये क्या कह रहे हैं, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कि इन्होंने दो लोगों को कंसेक्यूटिव बाईपास किया, एक ताबईन को किया और दूसरा सहाबी को किया। तो दो कंसेक्यूटिव बाईपास है, तो इस बुनियाद पर हम क्या कहेंगे कि ये मुअद्दल है। ठीक है, आगे कहते हैं कि मूसा ये क्या है, सिक़ा रावी है, लेकिन ये हदीस एक और बुनियाद पर ज़ईफ़ है, वो बहस का मौजू नहीं है। वो ये है कि अबू इसराइल जो है उसमें ये ज़ईफ़ रावी है। खैर, जो हम जिस बात पर आ रहे थे वो बात पे देखें कि ताबई और सहाबी दोनों मिसिंग हैं, और ये ज़ईफ़ है, तब तक ज़ईफ़ है जब तक कोई सपोर्टिव एविडेंस हमारे पास ना मौजूद हो। तो इसका हुक्म क्या लगेगा कि ये ज़ईफ़ हदीस है, और ये बदतरीन है हाल के, दूसरी चीज हुक्म जो है हाल के एतबार से बदतरीन है। उलमा के दरमियान इस बात पर इज्मा। तो आप मुअल्लक का एक मामला देख लें, मौज़ल का एक मामला देख लें कि क्या है कि कंसेक्यूटिव पे दर पे दो। मुअल्लक में क्या है, मुअल्लक में इब्तिदा में से, और मुरसल में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ट बाद, मतलब कोई सहाबी अगर हज़फ कर दिया जाए तो मुरसल, पे दर पे दो सहाबी या ताबई, ताबी या तबे ताबई, पे दर पे दो कंसेक्यूटिव एग्जीक्यूट किया जाए तो मुअद्दल, और अगर शुरू में इब्तिदाई सनद में से हफ्त किया जाए तो कहेंगे मुअल्लक। अब क्या है कि मुअद्दल कभी मुअल्लक हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कैसे, मुअद्दल जो है अगर इब्तिदाई में से दो एग्जीक्यूट पे दर पे या दो से ज्यादा हो जाए तो ये मुअल्लक को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर बीच में आ जाए या इधर आ जाए तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो मे बी और मे नॉट बी की कैटेगरी। अब अगला है मुनक़ते, लुगत के एतबार से कहते हैं ब्रोकन, टूटा हुआ। टेक्निकल इस्तिलाही टर्म में कहेंगे ये वो हदीस है जिसमें एक रावी गिरा हो सहाबी से पहले, या एक जगह, या ऑल्टरनेट। तीन बात आई, एक रावी गिरा हो कहाँ, सहाबी से पहले, या एक जगह, दूसरी बात यह है, या ऑल्टरनेट। तो सहाबी से पहले से क्या मुराद है, तो अब हम आते हैं चेन की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, ताबी, तबे ताबई। तो सहाबी से पहले कौन है, ताबई। या तो ताबई गिर को हदफ किया गया हो, या एक और जगह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्कॉलर वन एग्जाम्पल लेते हैं, स्कॉलर टू, शेख वन, शेख टू, और यह मुसन्निफ। हो सकता है यहाँ से भी गिर जाए एक एक, या ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट से मुराद है कि ताबई गिरे और एक शेख ये गिर जाए, तबे ताबई गिर जाए और शेख। तो ऐसे को कहा गया है मुनक़ते। इसमें दो तरह की राय है, एक पुराने मुहद्दिसीन और एक तो उनके लेटर मुहद्दिसीन, दोनों में, दोनों का की अलग अलग है। उसमें यह है, ये कहते हैं, ये पुराना जो डेफिनेशन है, या तबे ताबईन डायरेक्ट रिवायत करें सहाबी से, ये दूसरा कॉल है, ये एक कॉल है। इस कॉल में ये जनरल कॉल है, इसमें ये भी आ जाए, और लेकिन ये स्पेसिफिक कॉल है कि ताबई होना चाहिए सहाबी से रिवायत करते हुए। अब हम देखते हैं आगे,
इमाम नबवी फरमाते हैं, इमाम नबवी फरमाते हैं, इनका जो कौल है वो है कि अक्सर उलेमा ये कहते हैं कि मुनक़ते वो होगा जिसमें ताबई को छोड़ा जाए। किसको छोड़ा जाए? ताबई को छोड़ा जाए, जहां ताबी छोड़ दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर है, यहाँ नाफे हैं, इमाम मालिक मौता इमाम मालिक के मुसन्निफ है। इमाम मालिक किससे बयान कर रहे हैं? नाफे। नाफे कौन है? ताबे। ताबी वो किससे बयान कर रहे हैं? अब्दुल्ला इब्न उमर। कौन है? सहाबी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जब इमाम मालिक डायरेक्ट अब्दुल्ला इब्न उमर से बयान करें नाफे को हदफ करके, तो ऐसे रिवायत को हम कहेंगे कि ये मुनक़ते, ये मुनक़ते। और ये जो चेन है इसको हम गोल्डन चेन भी कहते हैं, सिलसिलतुल ज़हब, गोल्डन चेन। कुछ चेन्स होते हैं जो गोल्डन चेन होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग चेन होता है, उनमें से एक ये है, और एक बेहतरीन चेन है गोल्डन चेन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर, उसके बाद नाफे जो बहुत फेमस ताबीन है और शागिर्द अब्दुल्ला इब्न उमर के, और उनके शागिर्द इमाम मालिक जो मौता इमाम मालिक के मुसन्निफ। ये बात समझ में आ गई? अगर मालिक डायरेक्ट किससे रिवायत करे? अब्दुल्ला इब्न उमर से, तो उलमा के नज़दीक तबे ताबईन डायरेक्ट रिवायत करे सहाबी से, तो ये मुनक़ते होगा। तबे ताबईन किससे डायरेक्ट रिवायत करे? सहाबी से, ताबी को छोड़ के, तो ये क्या होगा? मुनक़ते। लेकिन बाद वालों ने, बाद के मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि आपने जो 3 कैटेगरी यहाँ पे बनाया था कि एक रावी कौन गिरा हो सहाबी से पहले, या एक जगह, या ऑल्टरनेट, तो ये कहते हैं कि बाद वाले क्या कहते हैं, ये इमाम नबवी का कौल था। बाद वाले क्या कहते हैं कि जो मुनक़ते होगा वो ना तो मुरसल हो, ना ही वो मुअल्लक़ हो, और ना ही वो मुअज़्ज़ल। मुरसल का मतलब, अब देखें मुरसल में हम क्या देखें, कौन गिरता है? सहाबी। मुअल्लक़ में कौन गिरता है? तो मुसन्निफ के साइड से 2 या 2 से ज्यादा, और मुअज़्ज़ल में कौन गिरता है? 2 रावी एक साथ पैदर पे, कंसेक्यूटिव। अब देखें मुनक़ते का जो मामला क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, ताबी, तबे ताबी, मुसन्निफ। मान लेते हैं ये मुसन्निफ के शेख 1 है, ये शेख 2 एग्जाम्पल। तो मुअल्लक़ में क्या होगा? आप देखिए इस चीज को, मुरसल में क्या होगा कि मुरसल में सहाबी गिरेंगे। मुअल्लक़ में क्या है? मुसन्निफ के साइड से 2 या 2 से ज्यादा। मुअज़्ज़ल में क्या है? पैदर पे ताबी है, तो तबे ताबी ताबी, सहाबी या ताबी। अब इसमें क्या है? मुनक़ते में ये है, पहले डेफिनेशन के हिसाब से ताबई गिरे, या कोई भी, फॉर एग्जांपल S1 गिर जाए, ये शेख 1 है, या ऑल्टरनेट का मतलब अगर ताबईन को हदफ किया जाए और साथ में स्कॉलर 2 को भी हदफ किया जाए, तो ये तीनों डेफिनेशन के एतबार से मुनक़ते होगा, अल्टरनेट भी मुनक़ते होगा। तो ये एक मुनक़ते पे बहस थी कि मुनक़ते कब और कब होगा। इस पे हम मिसाल लेते हैं इमाम नसई से। इमाम नसई बयान करते हैं मोहम्मद बिन सलमा से। मोहम्मद बिन सलमा ने खबर दी, काला, उन्होंने कहा, हदसना, हमसे बयान किया, इब्न वहब बिन यहिया अन यहिया, इब्न वहब ने, और वो कहते हैं कि अथॉरिटी ऑफ यहिया से फरमाते हैं कि बिन अब्दुल्ला बिन सालिम, वो कहते हैं अन अथॉरिटी से मूसा बिन उक़बा, वो कहते हैं अन अब्दुल्ला बिन अली
عبداللہ بن علی، اور وہ کہتے ہیں ان الحسین بن علی، اور وہ کہتے ہیں قال علمنی، ہمیں سکھایا کس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ کلمات پڑھنے ہیں کس میں، وطر میں، یہ جو دعا ہے پوری، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ مطلب ہے۔ تو اب اس پہ ہم جب غور کریں گے اس والے مطلب پہ، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو عبداللہ بن علی ہے جو ریڈ سے ہے، عبداللہ بن علی، کس کا نسبت ان کو دیا جا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن جب ہم غور کریں گے عبداللہ بن علی میں، تو یہ کون ہے، یہ بیٹے ہیں حسین بن علی کے، کس کے بیٹے ہیں، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے، لیکن ان کو منسوب کس کی طرف کیا جا رہا ہے، عبداللہ بن علی کی طرف کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں، حسین بن علی کے۔ تو اب یہ عبداللہ بن علی بیان کر رہے ہیں کس سے، ان حسن سے بیان کر رہے ہیں، کس سے بیان کر رہے ہیں، حسن سے، مطلب اپنے چچا سے بیان کر رہے ہیں، انکل سے، حسن رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن ہم دیکھیں گے، ہم جانتے ہیں جب جرح و تعدیل میں امام ابن حجر فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن علی کا اپنے چچا سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ کیا ثابت نہیں ہے، ملاقات اپنے چچا سے، ملاقات کی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ عبداللہ بن علی جو کہ عبداللہ بن حسین ہے، اصل میں عبداللہ بن حسین بن علی، ان کی ملاقات اپنے چچا سے ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت نہیں ہے تو یہ اپنے چچا کے حوالے اور اپنے حسن سے ثابت نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ خود تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ منقطع ہیں، کیوں، کیونکہ عبداللہ بن علی کون ہے، ابن حسین ہے، ابن حسین بن علی، اور ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے حسن سے۔ تقریب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن علی اصل میں کون ہے، عبداللہ بن حسین بن علی ہے، اور ان کی ملاقات اپنے چچا سے حسن بن علی سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب حسن بن علی کون ہے، صحابی ہیں، اور جب ثابت نہیں ہے تو پکا یہاں پہ تابعی ہوں گے۔ تو اب ہم دوسری روایت میں دیکھتے ہیں، سنن ترمذی 466 میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ بیان کیا ابی اسحاق، اور یہ آگے بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی، کس تک پہنچی ہے، ابو الحورہ تک۔ کس تک، ابو الحورہ، قال الحسن، حسن ابن علی سے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ جو مسنگ راوی تھے عبداللہ بن علی، جو اصل میں عبداللہ بن حسین ہے، اور یہ حسن رضی اللہ عنہ، حسن بن علی، یہ عبداللہ بن حسین لکھ دیتا ہوں کنفیوژن ہو، تو ان کے بیچ میں جو مسنگ تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث پچھلے والی منقطع ہوئی ہے، وہ کون ہے، ابو الحورہ السعدی۔ یہ ہمیں دوسری جگہ مل گیا۔ تو پہلی والی حدیث کیا ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ یہ تابعی ہیں، حسن بن علی سے یہ سن رہے ہیں، اور ان سے سن رہے عبداللہ بن حسین بن علی یا عبداللہ بن علی، تو یہ تابعی مسنگ ہو گئے۔ تو اس بنیاد پہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ منقطع، یہ ثقہ راوی عبداللہ بن ابو الحورہ السعدی، تو یہ منقطع روایت ہوگی۔ تو منقطع ضعیف ہے علماء کے نزدیک، حکم کیا لگے گا، ضعیف۔ یہ بات سمجھ میں آ گیا، علماء کے نزدیک کیا ہے، ضعیف، کیونکہ ہمیں جو راوی موجود ہے، جن کو حذف کیا گیا ہے، محذوف راوی ہے، ان کا حال ہمیں نہیں پتا ہے جب تک کہ کوئی حال نہ بتا دے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پریویس حدیث میں دیکھا کہ یہاں پر عبداللہ ابن علی اور حسن کے بیچ میں ایک تابعی مسنگ ہے، جن کا حال ہم کو نہیں پتا ہے، لیکن دوسری جگہ ان کا حال ہمیں پتا چل گیا ہے کہ وہ حال کون ہے، ابو الحورہ السعدی ہے، اور جن کے بارے میں ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے، تقریب التہذیب میں ہے، اور امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے قنوت کا، اس سے بہتر ہم اور نہیں جانتے ہیں قنوت کے اعتبار سے۔ تو یہ
ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، جس میں ہم نے 4 کیٹیگری آف ضعیف روایت کو دیکھا۔ ایک بار پھر سے آپ دیکھ لیں، مرسل، مرسل کا مطلب کون مسنگ ہوگا؟ صحابی۔ منقطع کون مسنگ ہوگا؟ تابعی یا کوئی اور یا آلٹرنیٹ۔ معضل کہیں گے، معضل کس کو کہیں گے؟ کہ جب پے در پہ کنزیکیوٹیو، اور معلق کہیں گے کہ جب ابتدائی سند، اسٹارٹنگ سند سے 2 یا 2 سے زیادہ راوی مسنگ ہوں تو ہم کیا کہیں گے اس پر؟ کہ وہ معلق۔ یہ ضعیف حدیث کی کیٹیگریز ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن اس پہ ہے، حکم بھی کیسے لگ رہا ہے۔ تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، مطلب اپنے جہل کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر کچھ مطلب بغیر اصول کو جانے ضعیف حدیث لیتے اور کہتے ہیں ضعیف، ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ۔ ایسی کئی مرسل روایت ہیں جو تائید کرتی ہیں، اس کے سپورٹ میں موجود ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارلی اگر جنریشن آف تابعی سے موجود ہے وہ چیز، تو کیا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کنڈیشنز کے ساتھ۔ جیسے کہ ایک ہے رباط، مسلمانوں کے جو حدود ہے اس پر جو پہرا دیتے ہیں، ان کے فضائل کے اعتبار سے ایک حدیث موجود ہے، مرسل ہے۔ اس کے بعد ایک یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے علماء انبیاء کے وارث ہے، یہ موجود ہے، اس طرح کی ہے۔ تو ہم اگر یس اور نو میں کام چلائیں گے جہالت کی بنیاد پر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ ہم اسکالر سے پوچھے جا کے، ہم نے سرچ کیا کسی حدیث کو گوگل پہ ترنت، اور وہاں آ گیا ضعیف، اور وہی حدیث کہیں اور متن میں سرچ کیا اور آ گیا صحیح یا حسن۔ تو اب ہم بولیں گے یہ حدیث یہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا ہے، آپ کو اصول نہیں پتا ہے، یہ کوئی اور سند ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی اور سند ہے، اور جو حدیث چیک کی ہم نے دیکھا کہ سند کے اعتبار سے بھی چیک ہو رہا ہے، تو متن جب دونوں کا سیم ہے تو سند ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اصول نہیں پتا ہے، اس بنیاد پر آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک ضعیف ہے، اور کوئی دوسری جگہ حسن بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے سپورٹ میں آنے سے یہ ضعیف قابل قبول ہو جائے۔ لیکن ہم اپنی جہل کی بنیاد پہ کیا کر دیتے ہیں؟ ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ۔ اور ایک گروہ ہوتا ہے کہ جو ضعیف ہے ایکسیپٹڈ، اچھا ٹھیک ہے چلے گا، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا معلق اگر ہوا کہ نیچے کا پورا غائب ہے، یا معضل ہے لگاتار 2 غائب ہے، کوئی سپورٹیو ایویڈنس موجود نہیں ہے، منقطع تابعین غائب ہے، کوئی اور الٹرنیٹ سپورٹیو ایویڈنس موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ اس کی بھی کنڈیشنز ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے دیکھا اسکالرز کے اندر ایک کنڈیشنز ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم مرسل کو ڈائریکٹ لے لیں بغیر کنڈیشن لگائے۔ مرسل میں کنڈیشن ہے، معضل، معلق اور منقطع میں تو آپ سمجھ لیجئے کہ بغیر کوئی سپورٹیو ایویڈنس کے پاسبل ہی نہیں ہے لینا۔ تو دونوں ایکسٹریم سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور اہل علم سے پوچھنے کی توفیق دے کہ جب ہم جہاں پہ معاملہ پھنس جائے تو ہم اہل علم سے پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔